Hello friends, this is Animesh and welcome to the Get Mantra। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और सब्जेक्ट गेट एंड एसी से रिलेटेड, दैट इज द एप्टीट्यूड। ओके, तो हम लोग एप्टीट्यूड में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। राइट, सिलेबस के लिए आप लोग किसी भी कोचिंग के वेबसाइट पर जाके उसका सिलेबस देख सकते हैं, गेट एंड ईएस का। ओके, so without wasting any time we are going to start a new chapter, that is time, speed and distance, right? So time, speed and distance. So let's see the first things first, that is the speed. So what is the speed? Speed is the total distance covered divided by what is the time taken to cover the distance. So the speed is nothing but the distance divided by the time। अब हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। ओके, एवरेज स्पीड, average speed is nothing but the total distance, okay, covered in that mean time। Okay, so total distance divided by total time is average speed। So here the speed is distance by time and average speed is total distance by total time। Now let us see the one example, that this is the point P and this is the point Q। Okay, and let's some vehicles is going, okay, and this distance is 12, right? This distance is from here to here, it is 12, right? It is 12. So let's some vehicles, okay, covering the half of the distance, that is the point M, by the speed of a kilometer per hour, and the second half of the distance is covering with the speed of b kilometer per hour। Okay, now what will be the average speed? Average speed is nothing but the total distance by total time, right? So what is the total distance? Total distance is 2l, and what is the total time? The total time, so time taken in covering the distance between P and M is L by A, because it's covering the distance L with the speed a kilometer per hour, plus covering the rest half of the distance with the speed b, L by B, then total 2l divided by, okay, we are taking the LCM here, or we are taking the L common, then L, okay, 1 by A plus 1 by B। Okay, now after solving this we will get 2AB divided by A plus B, right? So the average speed is here is 2AB divided by A plus B, right? So now see the another concept. Let the distance, total distance between P and Q is, this is the point P and this is the point Q, is 3l, okay, this distance is 3l, and let the 2 point, okay,
this is P. We have used P, so we will not write P here. So this is M and this is N. Okay, now vehicles cover the distance PM, which distance is L, and this is also the L distance. Okay, the distance between P and M is L. Distance between M and N is L, and distance between N and Q is L. So a vehicle covering the distance L with a speed a kilometer per hour, and now covering this distance L between M and N with the b kilometer per hour, and now covering this distance N and Q in c kilometer per hour, then what will be the average speed? Average speed is nothing but the total distance, that will be 3L upon my total time, that is L divided by A plus L divided by B plus L divided by C. Okay, so this is the L divided by V plus L divided by C. After solving this, the average speed will be 3ABC divided by AB plus BC प्लस सी है। तो इसमें से हम लोग को एक भी मीन्स फार्मूला याद नहीं रखना है। ओके, हम लोग सिंपल देखेंगे डिस्टेंस एंड टाइम एंड we will get the average speed, right? So a vehicle is covering the distance with different speed like a kilometer per hour, b kilometer per hour and c kilometer per hour. Then the average speed is nothing but the total distance by total time, right? Total distance of journey and total time taken to complete that journey. Okay, and this will give our average speed, right? Now let's see the some conversion. Okay, now we want to convert the meter per second in the kilometer per hour, right? Now we are converting the meter per second to kilometer per hour. Meter per second to kilometer per hour, right? So what is this meter per second? So we can write this meter per second as 1 meter divided by 1 second. This will be equal to the 1 divided by 1000. Okay, 1 divided by 1000 kilometer divided by 1 divided by 60 into 60. Okay, hour, because when we are converting this 1 hour having the 60 minute and 60 minute having the and 1 minute having the 60 second. That's why in converting the second to hour we have to divide 1 by 60 into 1 by 60, and converting the meter into kilometer 1 by 1000. Okay, now after solving this we will get the 18 divided by 5 kilometer per hour. So if anything's given in the meter per second and we want to convert in the kilometer per hour, then we are going to multiply with 18 divided by 5, right? Now in the same way we are going to convert the kilometer per hour to meter per second. So this kilometer per hour we will write here 1 kilometer divided by 1 hour, and this will be equal to the 1000 meter. 1 kilometer have 1000 meter, and 1 hour is 60 minute, and each minute have the 60 second. So this will be equal to, after solving, 5 by 18 meter per second. So when we are going to convert the meter per second to kilometer per hour, we are going to multiply with 18 by 5, and when we are going to convert 1 kilometer hour per hour to meter per second, then we are going to multiply with 5 by 18, right? Now we are going to see the board problem. Okay,
सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पूरे कंसेप्ट को सीखेंगे एंड आफ्टर दैट 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं जो क्वेश्चन जो कि आते हैं एग्जाम पे, डिपेंड अपॉन द बोर्ड। ओके, सो सबसे पहले ये ले लिए एक रिवर। ओके, अब इसमें जो वाटर है वो स्टिल वाटर है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। ओके, और एक स्विमर है। ओके, एक स्विमर है जो कि इस वाटर में स्विमिंग कर रहा है, राइट। तो उसका स्पीड जो होता है स्टिल वाटर में, ओके, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज vs, राइट। तो स्टिल वाटर में जो इसका स्पीड हो गया वो vs है, राइट। नाउ नाउ हम लोग देखते हैं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्या होता है। ओके, तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अब जो ये डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में स्विमर स्विमिंग कर रहा है उस डायरेक्शन में इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं, एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर इसको हम लोग, इस डायरेक्शन को हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। ओके, नाउ ये तो स्टिल वाटर में इसका वेलोसिटी ऑफ द स्विमर कितना है vs। अब इफ़ द स्पीड ऑफ द वाटर, अगर हम लोग स्पीड जो होता है स्ट्रीम का और वाटर का, ओके, अगर v लें, राइट, v लें, देन डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्विमर का, ओके, कितना हो जाएगा vs, जो कि इसका स्पीड, ओके, स्टिल वाटर में था, प्लस जो स्पीड था स्ट्रीम का, राइट, v। अब इसमें अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा स्विमर का, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्विमर vs minus v, this is the speed of, okay, stream, and v is the speed of the swimmer in the still water, and then overall speed of the swimmer in the downstream is vs plus v, and the overall speed of the swimmer in the upstream is vs minus v, right। अब इस पे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो इधर, ओके, वी हैव सीन हाउ टू tackle the board problem। okay, if the water is still, then the speed of swimmer will be vs, and if the speed of the stream in the downstream or in the upstream is v, then the speed of swimmer in the downstream is vs plus v, and is speed of swimmer in the upstream is vs minus v, right। so अब यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट 1, राइट। क्या है कॉन्सेप्ट 1, अगर स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हो, ओके, क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम स्पीड किसी भी क्वेश्चन में इज ए किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम स्पीड दिया हो बी किलोमीटर पर आवर, राइट। सो हम लोग जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो कितना होता है वी एस, स्पीड इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दिस विल इक्वल टू द ए, एंड द वी एस माइनस वी will be equal to b, and after solving this we will get vs will be equal to the a plus b divided by 2। okay, this is the speed of the swimmer in the still water, and now v will be equal to the a minus b divided by 2। so
अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जिसमें डाउन स्ट्रीम स्पीड 1 किलोमीटर दे दिया है और अप स्ट्रीम स्पीड 20 किलोमीटर दे दिया है, देन हम लोग स्पीड निकालेंगे स्टिल वाटर का जो कि a+b/2 होगा, एंड हम लोग स्पीड निकालेंगे स्ट्रीम का जो कि a-b/2 होगा, राइट। ओके, तो इसमें हम लोग को कुछ भी रटना नहीं है, सिंपल समझते जाना है और क्वेश्चन में अप्लाई करते जाना है। नाउ हम लोग सेकेंड कंसेप्ट देखते हैं। ओके, ये हम लोग का रिवर है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, राइट। इधर हम लोग जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम होता है और इधर अप स्ट्रीम, स्विमर इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। ओके, सो एक स्विमर है जो कि पॉइंट P से पॉइंट Q पे गया, ओके, एंड देन पॉइंट Q से पॉइंट P पे आया। ओके, तो डाउन स्ट्रीम में वो P से Q पे गया एंड अप स्ट्रीम में देन Q से P पे आया। देन एवरेज स्पीड ऑफ स्विमर क्या होगा? ओके, द एवरेज स्पीड ऑफ swimmer in his entire trip, okay, for his entire trip। कोई एक स्विमर है जो कि ओके P से पॉइंट Q पे गया है डाउन स्ट्रीम में, एंड देन पॉइंट Q से पॉइंट P पे आया है अप स्ट्रीम में, देन एवरेज स्पीड ऑफ स्विमर क्या होगा? सो ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड मालूम है हम लोग को जो कि vs+v होता है, एंड अप स्ट्रीम का स्पीड मालूम है जो कि vs-v होता है। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड? Average speed is total distance by total time, total distance by total time, and this will be equal to the what will be the distance covered. Here distance is L and here distance is L, so total distance is covered 2L, right, and total time taken is, for covering this distance L, the speed is vs+v, so L divided by vs+v, and plus for covering this distance L, the time taken is L divided by vs-v, राइट। तो ये सिंपल एक कंसेप्ट है जो कि क्वेश्चन में आएगा कि अगर एक स्विमर है जो कि पॉइंट P से पॉइंट Q पे जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, जिसका डिस्टेंस कुछ दिया होगा और Q से P पे जा रहा है, अगेन द सेम डिस्टेंस होगा, देन एवरेज स्पीड ऑफ स्विमर निकालना है, तो सिंपली उसके लिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कर देंगे, टोटल डिस्टेंस 12 एंड टोटल टाइम will be equal to the total this distance L divided by the speed, okay, vs+v and plus L divided by the speed vs-v, राइट। अब हम लोग थर्ड कंसेप्ट देखते हैं, राइट। तो थर्ड कंसेप्ट में ये है कि फिर से हम लोग ये बनाते हैं और फिर से एक पॉइंट P बनाते लेते हैं यहाँ पे, एंड एक पॉइंट Q ले लेते हैं यहाँ पे, और P एंड Q के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, वो लिख लेते हैं L डिस्टेंस। मान लीजिए दिस P एंड Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है। नाउ ये स्विमर जो है वो पॉइंट P से पॉइंट Q पे जाता है, राइट, एंड देन पॉइंट Q से पॉइंट P पे जाता है, एंड ये यहाँ पे दिया है कि टाइम टेकन, ओके, time taken in downstream, no, the time taken in upstream is n time the time taken in downstream, okay, time taken in upstream, the time taken in covering the distance in upstream will be equal to n time the time taken to covering distance in the downstream, okay, the time taken in downstream,
सो हम लोग जानते हैं कि टाइम टेकन इन upstream will be equal to the time taken in the downstream. So what will be the time taken in upstream? This will be equal to the L divided by what will be the speed in the upstream, Vs minus V, and this is the N. Okay, and distance is same, and time taken in downstream is Vs plus V, right? तो ये थर्ड कंसेप्ट है जिसपे क्वेश्चन आता है कि टाइम पॉइंट दे देगा और पूछेगा टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज टाइम टेकन इन द डाउन स्ट्रीम, देन कुछ स्पीड पूछ लेगा वी एस या वी पूछ लेगा, राइट। तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया। ओके, हम लोग फोर्थ कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पे। ये सेम अगेन ये पॉइंट दे दिया। ओके, ये हो गया पी एंड ये हो गया क्यू एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है एल। ओके, दोनों का बीच का डिस्टेंस दे दिया है एल, राइट, एल। ओके, अब ये बोला है कि टाइम टेकन इन द अप स्ट्रीम माइनस, ओके यहाँ पे लिखते हैं टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इन अप to cover the distance certain distance, this is the L in upstream, right, minus okay the time taken to cover the distance in downstream will be equal to दे दिया है t, राइट। सो ये बोला है बेसिकली क्या, द टाइम टेकन इन कवरिंग द डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम माइनस द टाइम टेकन कवरिंग द डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम विल बी इक्वल टू टी। तो हम लोग को पता है सिंपली कि टाइम कितना टेकन करेगा अप स्ट्रीम में, जो कि डिस्टेंस है एल डिवाइड बाई स्पीड इन द अप स्ट्रीम माइनस डिस्टेंस एल डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम विल बी इक्वल टू टी। इसको सोल्व करेंगे और हम लोग आंसर निकाल सकते हैं इसको सोल्व कर क्वेश्चन का। तो ये फोर्थ कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है बोर्ड प्रॉब्लम। तो बोर्ड प्रॉब्लम में टोटल कितने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, तो ये हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट की हम लोग को निकालना है द स्पीड, ओके, इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और इसमें डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड दिया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यह डिस्टेंस एल कवर कर रहा है इन द अप स्ट्रीम एज वेल एज इन द डाउन स्ट्रीम, एंड देन हम लोग को एवरेज स्पीड ऑफ स्विम वन निकालने के लिए पूछेगा इंटायर ट्रिप के लिए। एंड जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उस पर बोलेगा कि टाइम टेकन टू कवर a certain distance in the upstream is and the time taken to cover a certain distance in the same distance will be same in the downstream, right। तो हम लोग उसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। और द फोर्थ कॉन्सेप्ट है इस पे, द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम माइनस द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम विल बी इक्वल टू टी, जिसको कि हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नाउ अब हम लोग देखते हैं ट्रेन प्रॉब्लम। तो हम लोग का बोर्ड प्रॉब्लम हो गया, अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो ट्रेन प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम डिपेंडेंट ऑन द ट्रेन। ओके, सो कॉन्सेप्ट इसमें वन सीखते हैं कि मान लीजिए कोई एक ट्रेन है ये, ओके, जिसका ये केबिन है, इंड है, इसका डिस्टेंस कितना है एल, इस ट्रेन का डिस्टेंस कितना है एल है, राइट। इसका वेलोसिटी कितना है v वेलोसिटी से ये ट्रेन जा रहा है, राइट। और कहीं भी एक ये है
इसको हम लोग बोल देते हैं ये या तो पोल है या फिर एक स्टैंडिंग मैन है जो कि जिसका की स्पीड नहीं है। या हम लोग बोल देते हैं ये कोई भी पोस्ट बॉक्स है, ओके, जो कि एक कांस्टेंट है और जिसका लेंथ कंपेयर टू दिस ट्रेन का लेंथ नेग्लेजिबल है, राइट। तो इसको ओके इसको क्रॉस करने में तो ये है ट्रेन कितने टाइम लेगा, ओके। so time taken the time taken by the train of the length L having the speed v to a point or a pole or a man, ओके। तो इसका जो टाइम लेगा इसको क्रॉस करने में वो कितना लेगा, तो ये जब क्रॉस करेगा इसको और देन ये क्रॉस करेगा, पहले ए पॉइंट क्रॉस करेगा उसके बाद बी पॉइंट क्रॉस करेगा। तो जो टोटल टाइम लेगा इसको क्रॉस करने में ये पोल को या स्टैंडिंग मैन को या फिर पोस्ट बॉक्स को, ओके, या फिर कोई पेड़ ले लेते हैं, ट्री, इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ द ट्रेन, राइट। so the time taken by the train having the speed v and having the length l to cross a pole, a standing man or post box or any tree, okay, is L by V, right. Now we are going to see the second concept based on this train, right. So our second concept is the time taken by a train to cross a platform of length L, okay. तो हम लोग ले लेते हैं एक ट्रेन है ये जिसका लेंथ है L1, ओके, एंड ये एक प्लेटफॉर्म है, ओके, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ कितना लेते हैं हम लोग, L2 ले लेते हैं और L ले लेते हैं सिंपली। अब ये जो ट्रेन है इसका वेलोसिटी v है, ओके, और इसका लेंथ L है और इसको क्रॉस करना है एक प्लेटफॉर्म को जिसका लेंथ L है, राइट। तो ये कितने टाइम लेगा इसको क्रॉस करने के लिए, ओके, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। तो ले लेते हैं हम लोग दो पॉइंट, एक पॉइंट ए है एंड ए बी है। तो एक ये पॉइंट जब यहाँ पे आएगा, ओके, एंड एक ये पॉइंट जब ये मूव करके यहाँ पे चल जाएगा, ओके, एंड अगेन ये बी पॉइंट यहाँ पे आएगा एंड बी पॉइंट मूव करके यहाँ पे चल जाएगा। सो टोटल टाइम टेकन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म having the length L will be equal to T will be equal to the दोनों के लेंथ के सम हो जाएगा L1 plus L and divide by the speed of this train will be equal to the V will be equal to the time taken by the train to cross a platform having the length L, right। ये जब ट्रेन ओके ये ट्रेन जब क्रॉस कर जाएगा इस लेंथ L को, सो प्लेटफॉर्म का लेंथ L है ही और इस ट्रेन का लेंथ है L1, तो दोनों लेंथ को ऐड करके अगर हम लोग डिवाइड करते हैं दिस वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, देन हम लोग को टोटल टाइम आ जाएगा टू कवर दिस लेंथ L1 plus L, ओके, राइट। अब हम लोग देखते हैं हम लोग थर्ड कंसेप्ट इस पे। सो हम लोग ले लेते हैं कि दो ट्रेन, ओके, इसका लेंथ है L1 जिसका कि वेलोसिटी है V1 और एक ट्रेन है L2 जिसका कि वेलोसिटी है V2 और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, ओके, द V1 इज ग्रेटर देन V2, राइट। तो टाइम टेकन टू कवर द टाइम टेकन, ओके, टू क्रॉस L1 टू द L2 कितना होगा, ट्रेन T1, ओके, इसको हम लोग T1 ले लेते हैं और इसको T2। द टाइम टेकन ओके बाय द ट्रेन T1 टू क्रॉस द ट्रेन T2 इज L1 plus L2 divided by V1 minus V2, right। The time taken by the first train to cross the second train is the L1 plus L2 डिवाइड बाई V1 माइनस V2। अब हम लोग ले लेते हैं ये दोनों ट्रेन जो है जिसका के L1 है एंड ट्रेन T1 है जो कि वेलोसिटी V1 से जा रहा है,
और ये ट्रेन L2 है, ट्रेन T2 है जिसका लेंथ L2 है, एंड ये वेलोसिटी V2 से आ रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, देन द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ट्रेन टू क्रॉस द सेकेंड ट्रेन will be equal to T, okay, L1 plus L2 will be equal to T L1 plus L2 डिवाइड बाई, दोनों सेम डायरेक्शन में आता है तो बाई द रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से V1 प्लस V2 आ जाएगा, ओके, V1 प्लस V2 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू ट्रेन। तो वी हैव लर्न इन दिस लेक्चर राइट the basics of the speed, time and the distance, okay, what is the speed, then we have seen the average speed, right? After that we have seen how to convert the meter per second to kilometer per hour and kilometer per hour to meter per second, and then we have seen the boat problem, okay, the boat problem, and then we have seen the train problem. So this is all about the speed, time and distance, okay. So another concept is the time concept, the race concept, okay, is remaining here, and we will see this race concepts in our third video, right? So in the next video we are going to solve some numericals based on the speed, time and distance, okay. Thank you.